Okay, welcome back, guys. Today we are going to learn the model helping verb that's could. Could means in Urdu सकता था आणि कुडचा मराठीमध्ये अर्थ होतो शकत होता. Basically, could is used in past. First important thing, and where you have to use could. So could is used for showing ability or capacity or polite request. Ability, capacity or polite request. And remember one thing, with could we have to take first form, present form of the verb, and could is used in past only to show ability or capacity. Let's learn some sentences on could. So assertive sentence, the formula is subject plus could plus first form of the verb then object. This is the assertive sentence. And if we go in yes no question, then you have to begin the sentence with could, then subject, then first form of the verb, then object and question mark. It would be yes no question, or you can say verbal question as well. And for making passive voice, you have to begin the sentence with object only, then after you have to take could, then be, then third form of the verb, then preposition by, and then subject. Then that will be passive voice. So let's take some sentences for better understanding. So I have said कि I have to say वो क्रिकेट खेल सकता था. वो क्रिकेट खेल सकता था. वो को ही मॉडल कुड, ही कुड, खेलने को प्ले, ही कुड प्ले क्रिकेट, ही कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था. हम अंग्रेजी बोल सकते थे, हम अंग्रेजी बोल सकते थे. हमको आएगा वी, देन आएगा कुड, वी कुड, बोलने को आएगा स्पीक, वी कुड स्पीक इंग्लिश, वी कुड स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते थे. ओके, तैमूर किताब पढ़ सकता था, तैमूर किताब पढ़ सकता था. तैमूर could read the book. तैमूर could read the book. तैमूर किताब पढ़ सकता था. ओके, मुझे बोलना है कि आयशा मूवी देख सकती थी. आयशा मूवी देख सकती थी. आयशा could watch a movie. Aisha could watch a movie. So see the sentences, he subject, then after subject we used modal auxiliaries, that's could, then present form of the verb, then object. Same, we could speak English, we is subject here, could modal auxiliary helping verb, then present form of the verb, then object. Okay, Taimur subject, then could modal auxiliary helping verb, read, present form of the verb, the object, the book. Okay, Aisha could watch a movie, Aisha is subject, could modal auxiliary helping verb, watch, present form of the verb, a movie is object here. Means you have to use present form of the verb with could, and in could L is silent there. And remember one thing, could is used for showing ability, capacity or polite request in past. Ability, capacity और polite request in past. काबिलियत, कुव्वत या अदबन गुजारिश करने के लिए, काबिलियत बताने के लिए, कुव्वत बताने के लिए या अदबन गुजारिश करने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है. तो ये थे असर्टिव सेंटेंसेस. अब इसका यस नो क्वेश्चन बनाएंगे. यस नो क्वेश्चन बनाते टाइम पर आपको सिर्फ एक करना है, कुड को शुरुआत में ले लेना है. तो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो सेंटेंस ले लेते हैं. असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग यस नो बनाने वाले हैं. तो यहाँ पर है ही कुड प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता था. सवाल होगा क्या वो क्रिकेट खेल सकता था. तो चलिए लेते हैं क्या वो क्रिकेट खेल सकता था. पहले शुरू करना है कुड से. ये हुआ कुड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ये ही है, सो कुड ही, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, कुड ही प्ले, और ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, कुड ही प्ले क्रिकेट. एंड डोंट फॉरगेट पुटिंग क्वेश्चन मार्क. तो कुड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल सकता था. आगे चलते हैं. वी वुड स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते थे. सवाल होगा क्या हम अंग्रेजी बोल सकते थे. तो सेंटेंस में सबसे पहले कुड ले लेना है.
कुड के बाद आएगा सब्जेक्ट जो यहाँ पर वी है, कुड वी, उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक, कुड वी स्पीक, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, कुड वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोल सकते थे। अगला ले लेते हैं, यहां पर है सर्ट सेंटेंस तैमूर कुड रीड द बुक, तैमूर किताब पढ़ सकता था। अब सवाल होगा क्या तैमूर किताब पढ़ सकता था। सो सेंटेंस को शुरू करना है कुड से, क्योंकि यस नो की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज या टू डू के हेल्पिंग वर्ब से, टू बी के हेल्पिंग वर्ब से, टू हैव के हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। तो यहाँ पर कुड है, मॉडल ऑक्सिलरी, तो उससे शुरू करना है कुड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो तैमूर है, कुड तैमूर। अब उसके बाद आएगा वर्ब की पहली फॉर्म जो रीड है, कुड तैमूर रीड, आगे ऑब्जेक्ट आएगा द बुक, कुड तैमूर रीड द बुक, क्या तैमूर किताब पढ़ सकता था। अगला आएगा आयशा कुड वॉच अ मूवी, आयशा मूवी देख सकती थी, क्या आयशा मूवी देख सकती थी। सो सेंटेंस की शुरुआत कीजिए हेल्पिंग वर्ब से जो कुड है, ठीक है, कुड। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आयशा, कुड आयशा, आगे आएगा वर्ब की पहली फॉर्म वॉच, कुड आयशा वॉच, आगे अ मूवी, कुड आयशा वॉच अ मूवी, क्या आयशा मूवी देख सकती थी। तो जैसे आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद आ रहा है कुड, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यस नो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये सेंटेंस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दे ऑल आर बिगिनिंग विथ मॉडल ऑक्सिलरीज कुड, and then after that subject is there, and then first form of the verb means present form of the verb, and then we have taken object, object, object and object, and last we put question mark here, so it will become yes no question. Okay, so let's make passive voices of them. So assertive sentences are written, we have to make passive voices of them. So the sentence is he could play cricket, वो क्रिकेट खेल सकता था, क्रिकेट उनके जरिए खेला जा सकता था। फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, पहले ऑब्जेक्ट ले लेना है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है, तो क्रिकेट, तो ले लीजिए, पहले हुआ क्रिकेट, अब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा कुड, क्रिकेट के बाद लिए कुड, अब उसके बाद आपको ले लेना है बी, ठीक है, क्रिकेट कुड बी, अब थर्ड फॉर्म ये प्ले का होगा प्लेड, क्रिकेट कुड बी प्लेड, अब आएगा थर्ड फॉर्म के बाद बाय, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय, और यहां पर जो सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो ये हुआ क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके जरिए खेला जा सकता था। आगे चलते हैं, वी वुड स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते थे, अंग्रेजी हमारे जरिए बोली जा सकती थी, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, we could speak English, so yeah, English is object here, so begin the sentence with that English। अब आएगा helping verb could, English could, then after be English could be, अब थर्ड फॉर्म क्या है, spoken, English could be spoken, प्रीपोजिशन आएगा by, और we का ऑब्जेक्टिव केस होगा us, इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय अस, अंग्रेजी हमारे जरिए बोली जा सकती थी। अगला ले लेते हैं, तैमूर कुड रीड द बुक, तैमूर किताब पढ़ सकता था, किताब तैमूर के जरिए पढ़ी जा सकती थी, किताब तैमूर के जरिए पढ़ी जा सकती थी, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करना है सेंटेंस, और ये द बुक इज ऑब्जेक्ट हियर, सो बिगिन द सेंटेंस, द बुक, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब कुड, उसके बाद आएगा बी, द बुक कुड बी, द बुक कुड बी रेड, द बुक कुड बी रेड, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन बाय, और यहां पर सब्जेक्ट तैमूर है, तो ऑब्जेक्ट बनाकर उसको लेना है तैमूर, तो ये हुआ द बुक कुड बी रेड बाय तैमूर, किताब तैमूर के जरिए पढ़ी जा सकती थी। अगला ले लेते हैं, आयशा कुड वॉच अ मूवी, आयशा मूवी देख सकती थी, मूवी आयशा के जरिए देखी जा सकती थी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ मूवी, उससे शुरू करना होगा, तो अ मूवी। अब उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है कुड, अ मूवी कुड, उसके बाद आएगा बी, मूवी कुड बी, तीसरा फॉर्म वॉच को ईडी लगा देना है,
अ मूवी कुड बी वॉच्ड, अ मूवी कुड बी वॉच्ड। अब जरिए को प्रीपोजिशन लेंगे बाय, और यहां पर सब्जेक्ट आयशा है तो वैसे ही ले लेना है। सो ये हुआ अ मूवी कुड बी वॉच्ड बाय आयशा, मूवी आयशा के जरिए देखी जा सकती थी। तो आज हम लोगों ने कुड सीखे। कुड का इस्तेमाल पास्ट में होता है, जमाने माजी में, भूतकाल में, और उसका मतलब सकता था, शकत होता है। पास्ट में एबिलिटी, कैपेसिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो आपको जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो अगर अच्छी लगी होंगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।